Let's just find out. Ashutosh Rana. Please put your hands together and a huge round of applause for Mr. Ashutosh Rana. So let's come up with the third character of the movie. The eternal beauty, the gorgeous face of Indian cinema. Please call on stage Manjari Fadnis. Can we have her on stage, please, with a huge round of applause? So can we have the fourth AV, please? So that's the newest heartthrob of India. Please put your hands together for the lover boy Himansh Kohli. Can we have him on stage, please? जो हिमांशु बोलेगा मैं अंदर चल जाऊंगा। हिमांशु वहाँ पे ऐसे एक्सक्यूज मी सेंटर में लिखिए आता हूँ। Due to lack of words, I would just like to say let's welcome the living legend on stage, Mr. Prem Chopra. Yeah. Thank you guys. So I would like to invite the producer, the executive producer and the director to come on stage and also unveil the logo and fulfill the evening.
And I would also like to invite Mr. TP Agarwal on stage to come and unveil the logo of Jeena Aisi Ka Naam Hai with the cast and the crew. So can we spread that side? Logo now we will unveil it by our clapping our hands because that. Yeah, we have to press a buzzer to unveil the logo. Only be light on one time. So we'll clap and then we'll take a part and logo will be unveiled over here. Let's do 1, 2, and 3. Now the Jeena Aisi Ka Naam Hai logo, please. Can we have the logo, please? Now coming back to your question, you know, as actors we tend to shoot in extreme conditions. You know, sometimes it's very hot, sometimes it's very cold. So when we are involved in our work, we kind of really don't give too much of thought. When I did a film called Maa Tujhe Salaam, also I was shooting in like minus like 5 degrees and all that. But this time it was what? How much? Just 10, 12. Minus 10 and 12, which I was not even used to. And then there was this wind chill factor. But जब आप scene में involve होते हैं, तो आपको पता नहीं कहाँ से गर्मी आ जाती है. तो मेरे में भी कई, I mean, temperature, I felt like I was like, I think Manjri आपके साथ था scene. I almost started feeling hot in any case. So it was like that, you know. So once you're involved, then it really doesn't matter what the temperature is. So it was a good experience though. Awesome. We shot in some beautiful locations, and we shot in America. The film is so beautiful in the way it's been shot, and the locations and all are so wonderful. It's really a privilege to be a part of this film. Which is your favorite location? Well, we shot in Maryland, you know, so we shot in some really good locations. We shot in Washington, D.C. Wow. So yeah. Constitution Hall. Yeah, we shot over there. So it was very nice, yeah, lovely. Awesome. So the next question is for Prem sir. Sir, what was the best part about playing your own character, which is Shaukat Ali Mirza Qawwali Wale? कव्वाली वाले अच्छा कराची वाले जाहिर बात यह है कि आप सब लोग तो जानते ही हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूँ तो अभी तो वो रोल तो नहीं कर रहा अभी ऐसे मिर्ज़ा साहब कभी चचा जान कभी दादा जान कभी पिताजी ऐसे रोल करता हूँ बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा लगा ये रोल करते हुए इट वाज डन वेरी वेल रिटन वेरी वेल बाय केशव एंड केशव इज़ अ वेरी innovative director, very hard working, and he gave some excellent scenes and shots, which I was very pleased to see that because his idea is very different than most of the film directors here in this country. So hopefully with your cooperation, this picture will succeed, and I wish the entire thing very much. And Purnima ji, who is the producer and the financer of the film, she has also done a very great job in organizing things, and everything is gone on a beautiful manner. Thank you so much. All the best. Love you. Thank you, sir. So Himansh, why so much of a gap after Yaria? What took you so long to come back when girls are dying to see you on screen? Were you waiting for me? Kind of. Just like many other women. So, Oh, thank you so much. many other girls, yeah. तो आते रहना पड़ेगा फिर तो. Definitely. After Yariyan, actually, things were going really good, and people were really appreciating. Everybody was really appreciating, and my songs were everywhere. And I think अभी तक बज रहे हैं हर जगह. ब्लू है पानी पानी पता नहीं. I think हम लोगों ने सबको finally बता ही दिया कि पानी गर्म ब्लू होता है. But after that, for all the movies I was approached, तो मुझे ऐसा लगा मैं यहाँ हीरो बनने आया हूँ लेकिन सब वो मास्टर बनाने में आ गया मेरे को. स्कूल कैरेक्टर्स, more of school, and कॉलेज भी आई थिंक बहुत मुश्किल दिख रहा था. then it was only school. So I'd asked my director, producers and all my friends that what should I do next. So they were like, I think यार अभी तू बहुत छोटा लग रहा है तो एक आध 1.5 साल का कुछ गैप ले, थोड़ा बॉडी बना अपना and groom yourself and कुछ different दिखा. So I think 1.5 year later you can see वहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ लग रहा है तो बता देना यार difference. Thank you so much. Ashutosh sir,
What made you take up this role when you are so choosy about your movies anyway? I mean, it takes ages to see you on screen. So why this movie? देखिए होता ये है कि हर माँ अपने बच्चे को राजा बेटा कहती है और जब किसी फिल्म में आपको राजा बनने की नौबत आ जाए तो आप तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं. सो आई एम प्लेइंग ए रोल ऑफ ए प्रिंस ऑफ मेवाड़. Wow. तो ये और लोग पैसे दे के राजा बनते हैं, इसमें मुझे राजा बनने के लिए पैसे दिए गए हैं पूर्णिमा जी और केशव के द्वारा. लेकिन जिस तरह से केशव जब आए थे इस स्क्रिप्ट को लेके और इन्होंने जो नरेशन दिया था और इनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन जिस तफसील के साथ और जिस बारीकी के साथ उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म शुरू से लेके अंत तक और सुनाई, और मुझे लगा कि ये एक अद्भुत सुलझा हुआ व्यक्ति है जिसको अपनी स्क्रिप्ट के बारे में, अपने किरदारों के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे भी क्लियर है और कागज़ के ऊपर भी क्लियर है. और मैंने अभी तक कभी इस किस्म का कोई किरदार नहीं किया था जो अक्सर मुझे, मैं भाग्यशाली हूँ कि चुनौतीपूर्ण और बड़े चैलेंजिंग और ग्रे शेड के किरदार मिलते रहे हैं, या ये कहें कि नेगेटिव रोल्स को हमने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया है, इसलिए उसका एप्रिसिएशन भी मिलता रहा है. लेकिन इस किस्म का किरदार कभी हमारे हिस्से में आया नहीं था और हमें लगा कि विक्रम प्रताप सिंह अगर कोई हो सकता है और वो एक ही होता है और वो हम हैं, तो ये कर लिया गया. बेशक सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. Manjari? Yes. I have one personal question, then we'll ask the other one. You are one of those very few actresses to shoot next to White House, and I would have been extremely intimidated if I was there. Were you? I think more than me, the police out there was intimidated by my presence out there because they were like, I know what this girl is going to do to the White House. She's just looking and mesmerized. I don't know what she's going to do. So they just kicked me out from there. That's what happened. Okay, and what was the hardest part about playing Alia? You obviously can't reveal much, but some challenge that you faced because you were playing Alia. I think Alia by far is the most difficult role I have played till now, and I've worked very, very hard on this. So I mean, like you'll watch it in the film. I hope it's come out really nice. So we have done it, but it was difficult, especially because she didn't have a particular character throughout the film. The whole film, she is switching from, there's some change that's happening. Like in everybody's life, when you are growing up as a teenager, and then when you keep growing up, like you have so many lessons you learn in life. And that changes you as a person at every step, and you become a more evolved person. So there's a little graph, there's a huge graph in the character which keeps going up and down. So so that's why it was very difficult. Awesome. So Purnima ji, despite being right from the heart of Hollywood, what made you produce a Bollywood movie? Because you're very close to LA and Hollywood projects, and I know everything. So why Bollywood and why Jeena Isi Ka Naam Hai? That's a very good question, because I am an Indian by birth, but if you really want to bring out emotions and if you really want to bring out character, I think a Bollywood movie are the best movies. They really can pull out the character in a person. Yeah. That was so kind of Mr. Premji. Yeah, so even if you had writing a story is something, but when you enact that same character, I would any day hang my hat on a Bollywood movie, because in that 2.5 hours, you have basically traveled so far from your emotions, your characters, that you have lived, I think, every part of your life in those 2.5 hours, if the movie is still 2.5 hours nowadays. That's the reason why I said if I have to do anything, then I would like to tap on this Bollywood market, because people here know how to express. People here know how to express their sorrow, their joy, and their fear, their emotions. So that was the main reason, and I think I'm very happy. That you chose Jeena Isi Ka Naam Hai. Correct. Thank you so much. Can we have the mic for Stanton now? Stanton, your love for India is pretty evident, but your love for Bollywood isn't. So have you seen Bollywood movies, or is it your first ever venture in a Bollywood movie, behind the scenes or front?
We watch Bollywood films all the time. Which is your favorite? This one. Ah, that's a good one. It's increased my reading skills because I have to read the subtitles. Yeah, you need subtitles. Unfortunately, I miss a little bit of the storyline because I'm reading, you know, but all in all, I've really appreciated Bollywood films for love stories, things like that. Dancing. And we gather together as family and watch a lot of movies together with the brothers and sisters. And love it. Thank you. I'm very happy with performances. I'm very happy with the kind of canvas that we wanted to create. So, you know, ऐसा नहीं लगता फिल्म को देख के कि आप you feel that you are in some other world. हर एक जगह पर, हर एक लोकेशंस पे, हर एक चीज़ पे हमने बहुत मेहनत की है. फिल्म के अंदर it's like 30-35% VFX हैं, CG है, animations हैं और म्यूजिक है. It's सागा फिल्म, it's a big film, big canvas film. तो हम चूंकि हम पहली बार बना रहे हैं, लेकिन आपको देख के लगेगा कि कोई एक अच्छी फिल्म आपको देखने को मिलेगी कुछ ही दिनों में. और मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं हैं, but I'm very thankful to all of you. You came here to encourage us. Thank you very much, my star cast, अरबाज सर, आशुतोष जी, everybody. Thank you very much. ज़्यादा बोलूँगा तो फिल्म के ऊपर रिवील हो जाएगा, इसलिए मैं चुप्पी करके I'll hand it over to you if you want to ask anything. Thank you, sir. So we have someone who wants to ask something. Before you leave, sir. Thank you. I am really very happy to come here, and the biggest thing is that at least some good people have come to Bollywood, and I really wish that this picture should be successful, so that they will make some more better pictures, and this picture will be a success. And I definitely wish you best of luck for this. So thank you very much. आशुतोष जी, आपसे सवाल है इधर आपके फ्रंट में, रितेश ETV से. आपके लिए जीना किस चीज का नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये सब्जेक्ट चुना इस फिल्म का? देखिए मेरे लिए जो जीना है वो ये है कि अगर आपके मन में जो करने की इच्छा है उसे अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी अवरोध के कर पा रहे हैं फुल स्विंग में, तो जीना उसी का नाम है. और मुझे लगता है कि आशुतोष राणा का प्रोफेशन भी एक्टिंग है, आशुतोष राणा का एजुकेशन भी एक्टिंग है और आशुतोष राणा का पैशन भी एक्टिंग है. तो इस वजह से मेरे लिए जीना इसी का नाम है. ये तीनों चीज़ें एक जगह मिल रही हैं और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि इसमें वो आपने किरदार का लुक देखा और मुझे लगता है कि अगर इस किस्म के लुक का किरदार है, ये सिर्फ एक फ़ोटो देखी है आपने और इसके कई किस्म के रंग, 2 फोटो देखे हैं आपने अभी. एक उस तरफ थी क्लीन शेव और एक इस किस्म के जो जिसमें जब मेरी एंट्री हुई थी. तो इसमें कई सारे ऐसे रंग हैं जिसको आशुतोष राणा ने अभी तक कभी टच नहीं किया था और मुझे लगा कि एक एक्टर के रूप में अगर ये एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिलता है तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है. और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 100% उस समय हमारे पास था वो हमने जान लगा के किया है. और अभी तक मेरे जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं, ये प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने फिल्म का कुछ हुआ हो लेकिन पीठ हमारी ठोकी है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया. तो इस बात की हमें प्रसन्नता है कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी और ये किरदार भी आपको बहुत रास आएगा. अरबाज आपसे सवाल है, जैसा कि सर ने कहा कि जीना जो भी मन कहता है वो कहना चाहिए. आपके हिसाब से जो चीज कोई भी अगर कहता है तो आप किस चीज को पसंद करते हैं, कहना या करना? इस फिल्म को आपने क्यों किया? फिल्म करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप पहले बात तो जो सब्जेक्ट आपको सुनाया जाता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हो, उस कैरेक्टर से आप आइडेंटिफाई करते हो, आपको कितना आप उससे रिलेट करते हो. देन द पीपल हु आर मेकिंग द फिल्म, आपको पता है कि एक फिल्म की जो जर्नी है वो एक कोई 10-15 दिन की होती नहीं है. मतलब बाय द टाइम आप एक फिल्म को आप फिल्म मेकर से मिलते हो, बाय द टाइम डिस्कशन होता है, डेटें फाइनल होती हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है फिल्म के अंदर दौरान काम करने का, एक ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है आपको. अब इस स्टेज के ऊपर हम आ गए हैं कि हमारा एक जजमेंट हो जाता है कि लोगों के साथ काम करने के लिए हमारा व्हाट विल बी माय इक्वेशन विद देम, यू नो, बिकॉज यू हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल.
So when you meet people like Keshav and you know he is, you know, making his debut as a filmmaker, आप इनमें वो फायर देखते हैं, एक्साइटमेंट देखते हैं, इनमें अच्छाई देखते हैं, दिल करता है कि आप इनके साथ काम करें, क्योंकि ये जो जोश और जुनून लेके आते हैं, हम we become a part of that and we become a part of the journey, and sometimes their fate and their life and success can affect us also, and we learn a lot. तो बहुत से it's a holistic approach towards doing a film. कोई एक particular reason नहीं होता है फिल्म करने का, और उसमें बीच में पैसे भी होते हैं. लेकिन what I'm saying is that basically it's about the people you work with, it's the work, the role, the character in the film, and I can see that I'm happy. जो मैंने decision लिया is the right decision, because I can see the film being made with a lot of love and passion by Keshav. Thank you very much. Thank you, sir. Who? Hello. हाय अरबाज, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप नवाजुद्दीन के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, उस फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहेंगे. हम बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लग रहा है. I would have loved to speak about that. उसका मौका मिलेगा जब सोहेल अपनी फिल्म का प्रमोशन करेगा, तब. आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं आई एम वेरी हैप्पी टू गिव इट, बट आई थिंक उसका एक सही समय होगा जवाब देने का जब हम उस फिल्म के प्रमोशन कर रहे होंगे. इस वक्त वी आर on somebody else's sets, somebody else's promotion. जीना इसी का नाम है. I think it's more appropriate that we talk about this film than to talk about some other film and some other role and some other character that I'm playing. अरबाज, एक और सवाल कि बॉलीवुड में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है. Again, I think आप इस Guys, let's stick to जीना इसी का नाम है questions. This is not a platform for me to sit down and comment about other things. You know, we are talking about the film. Let it be the film promotion. कभी आप मुझे अकेले में मिलोगे, आपको कुछ और सवाल पूछने मेरे से, हम तब जवाब देंगे. अरबाज, लेकिन बात काफी सेंसिटिव थी. सलमान ने जो बात बोली है रेप वुमेन्स के बारे में, जो उन्होंने सुबह सुबह कहा, काफी बवाल हुआ इस चीज को लेकर. आप पर्सनली क्या मानते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, क्योंकि आप भाई हैं, आप जानते हैं कि किसी. ये सवाल मुझसे आज किसी ने पूछा था. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि not every question or not every incident that happens with Salman, I am supposed to be answerable to that first and foremost. मतलब सलमान शादी कर रहा है, नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है. सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी ज़िंदगी जैसे जीता है. मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है सलमान का. मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है. शूट. अच्छा, आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा. आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं सुना. तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना. अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था. मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था. इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ, जो अपन किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं या हमको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, बोला अरे अभी गधा वर्ड यूज़ किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए. तो कभी कभी आप कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो. आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वॉज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट इफ ही फील्स द नीड टू अपोलोजाइज, he will apologize or not apologize. Why are you asking me a question whether he should or not? I don't think it's fair. मेरा ओपिनियन, मैं बोलूँ हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, या मैं बोलूँ कि नहीं करना चाहिए. आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर. आई थिंक इट इज़ हिज इशू. आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे, बट आई शुड नॉट बी सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला तो मे बी ही शुड probably give a justification. But I don't think I am entitled to make a comment and say that he has to apologize. I would hope that he gives a clarification for whatever, because controversy हो गई है, तो उसका एक बनता है कि एक जवाब देना बनता है, क्योंकि people look up to him, he has got a lot of following and he's like a youth icon and whatever.
So if he's made a statement that does not look very appropriate या कान को अच्छा नहीं लगा है, तो शायद I think in time he will give a statement. बट अरबाज सलीम साहब ने इस पे माफी मांगी है सलमान की बिहाफ पे. देखो सलीम साहब इज द फादर. अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर कोई लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है या कभी कभी आदमी इस वजह से भी माफ़ी मांगता है क्योंकि किसी को कोई चीज़ बुरी लगी हो कि यार चलो मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं लगा मैंने कुछ ऐसा कहा, लेकिन आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ. हमेशा माफ़ी मांगने का रीज़न इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यू आर जेन्युइनली सॉरी अबाउट व्हाट यू सेड और डन. समटाइम्स बिकॉज यू हैव हर्ट समबडी सेंटिमेंट्स, बिकॉज यू हैव सेड समथिंग दैट इज नॉट सो अप्रोप्रिएट, यू अपोलोजाइज फॉर दैट. And like I said, this is not the platform to talk about Salman and his issues. We have come here for somebody else's work. Let's finish that and then maybe at some other stage we can talk about this. Thank you so I think it's not fair. These people are not interested in answering what Salman Khan has said at the end of the day. Thank you so much. Hello. Thank you. My question is to Arbaz sir only once again. आपकी एंट्री थी, उन्होंने बताया कि एज अ जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया. अभी एंट्री आपकी जो हुई थी तो उन्होंने आपको ये क्या थी जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया करके. हाँ, गलती से दे दिया था उन्होंने. अभी हर चीज को थोड़ी बिलीव कर सकते हो. नहीं. अभी इनसे गलती होगी, अभी इसका जवाब अब मेरे को जुर्माना ये भरना पूछना था कि आपने इस पिक्चर में जेम्स बॉन्ड का किरदार किया है क्या? देखो पर्सनल लाइफ में मैं भले ही जेम्स बॉन्ड हूँ, स्क्रीन पे शायद नहीं हूँ मैं. हेलो. No, I meant it. I totally meant it. He does look like James Bond. But which one? There are so many James Bonds. Roger Moore, Sean Connery. Of India, I'm saying. If they make it in India, I think they should totally take you. I'm not India comparing. में अगर जेम्स बॉन्ड पिक्चर बनेगी तो वो मैं राइट कास्टिंग हूँ इनकी वजह से. Good evening to all. Hello. I'd like to ask anyone can answer this question. इस फिल्म का नाम जीना इसी का नाम क्यों रखा गया है? And what is the subject of the movie? You want to answer? Yeah. I can answer this question. If I give you the subject, I might be telling you the story, but I can give you a little gist of Jeena Isi Ka Naam Hai. I'll try my best to speak in Hindi also. That's good for me too. जीना इसी का नाम है क्योंकि सबके जीवन में सुख दुख आता है, सबके जीवन में there's all kinds of emotions are there in someone's life. मगर जीना उसी का नाम है. अगर उस between those emotions we cannot do that because जीना इसी का ही नाम है कि हम उसके बीच में से हम कैसे निकलेंगे, हम कैसे जीत बन के निकलेंगे. So did I answer your question? Did I confuse you? Yeah. Okay. Thank you. Perfect. Okay, thank you. पूर्णिमा जी, लोबो देख के बड़ी खुशी ऑन योर फ्रंट, इन योर फ्रंट. लोबो देख के बड़ी खुशी, बड़ा अच्छा लोबो है, जीना इसी का नाम है. I'm sitting here in front of you. Okay. कुछ हो ना हो लेकिन बीबियां बहुत खुश हो जाएंगी. बीबियां फिल्म प्राइवेट लिमिटेड देख के, बीबियां घर की बीबियां बहुत खुश हो जाएंगी. खुश हो जाएंगी. Thank you very much. I think जैसे कि कहा मैंने कि सारी गलतियां आदमियों की नहीं होती ना, औरतों की होती, सिचुएशन की होती है. अब उस सिचुएशन से इंसान कैसे निकलेगा, जीना उसी का ही नाम है. वाह. केशव जी, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए. पहले आप कहाँ काम कर चुके हैं, कितना क्या, कैसे इनके साथ काम कर रहे, कैसे लगा? मेरा अनुभव बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा रहा, आनंदमय रहा पूरा मेरा ये सफ़र. क्योंकि जिस तरह से हमने सोचा था, वो कई बार क्या होता है कि हम सबसे बड़े क्रिटिक अपने काम के हम खुद ही होते हैं. जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार इसको बेहतर से बेहतर करें, लेकिन जिस लेवल पे हमने सोचा था उससे जब बेहतर हो जाए तो एक दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जैसा सोचा उस तरह से फिल्म उभर के आ रही है. और फिल्म मेकिंग ही अपना आप संघर्षों भरा रहता है कि हर डगर, हर पल, हर वक्त आपको किसी न किसी का सामना करना पड़ता है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मुसीबतें आती नहीं हैं तब तक काम करने का मज़ा भी नहीं आता है. तो और इसी का नाम है जीना, इसी का नाम है कि मुश्किलें आएँ, आप उसको पार करें, फिर आगे बढ़ें, फिर मुश्किलें आएँ, और जीना इसी का नाम है. तो हम तो पहले से ही इसको जी रहे थे और फिर हमने सोचा स्क्रीन पर भी जीना कर देते हैं. और आशुतोष जी के पास में जीना इसी का नाम है का बहुत बेहतरीन जवाब भी है जो उन्होंने पहले मुझे बताया था. मुझे याद नहीं है. देखिए क्या होता है, हीरो या किसी की भी जिंदगी जो होती है वो हीरोइक इसलिए नहीं होती
कि वो किसी टेम्पटेशन में ना फंसे, बल्कि इसलिए हीरोइक हो जाती है कि वो व्यक्ति जो टेम्पटेशन में फंसने के बाद अपने आप को वापस राइज करे, खड़ा हो जाए, तब कहीं आप हीरोइक स्थिति में आते हैं। तो जिनकी भी जिंदगियां प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अनुकूल परिणाम ले पाने में सक्षम होती हैं, उन्हीं लोगों की जिंदगी को आप जीना इसी का नाम है कहते हैं। और हमारी इस फिल्म में यही है कि तमाम किरदारों के पास बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जिसको वो अपने अपने रुतबे के हिसाब से अपने अनुकूल बनाते जाते हैं, और वो उन परिस्थितियों को चीरते हुए उनके ऊपर खड़े होकर अपने व्यक्तित्व को या अपने किरदार को खड़ा कर देते हैं, सफल हो जाते हैं। अभी यही चीज आशुतोष राणा जी हिंदी में बताएंगे हमको। अच्छा है, अच्छा है। Any more questions? Hello, over here, Ashley. Hi. हेलो हेलो हेलो। कुछ चीजें अपन अगली मुलाकात के लिए रखें, आज तो सिर्फ लोगों का आनंद लें। Hello, over here. Ashutosh. Over here. Hello. Yeah. Hi. दुनिया में सब कुछ मिलता है दोस्तों की वजह से मिलता है, लेकिन आपको दुश्मन ने दिया है। So जीना इसी का नाम है, दोस्त है कि दुश्मन? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि 1999 में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और मैंने जो बोला था वो आपको 2016 में याद है। बताइए, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो जीना इसी का, मेरी सबसे अच्छी बात है कि मैं दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना के चलने में माहिर हूं, तो इसलिए मुझे हमेशा से बेनिफिट ही होता है। मेरी जिंदगी में कभी मैंने दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाया। एक हुनर मेरे अंदर है कि मैं दुश्मनों को दोस्त बनाना जानता हूं। तो जीना इसी का नाम जो है, वो जब आई थी तब दुश्मन थी, लेकिन होते होते दोस्त हो गई, तो बेनिफिट दे के जाएगी। अरबाज सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हाय सर, एक्चुअली आपने मेकिंग तो कंप्लीट कर ली, बट जाहिर सी बात है कि आपके घर में भी, फैमिली में भी सलीम सर ने या सलमान सर ने मेकिंग देखी होगी। तो सलीम सर ने और सलमान सर ने, हाँ, फिल्म की मेकिंग देखी है, उन्होंने नहीं देखी है। ओके। आपकी फैमिली में किसी ने भी मेकिंग देखी है इस फिल्म की? या नहीं सर। ओके। तो मेकिंग कैसे देखेंगे अभी? नहीं, सॉरी, इट्स जो भी है अभी, जो प्ले कर रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो देखी होगी आपकी फैमिली में? नहीं देखी है ना, मैंने खुद ने नहीं देखी है, तो उन्होंने ओके, आज ही तो देखी है। मैं अभी काम, आई हैव वन क्वेश्चन। कौन सी दुनिया में काम करती है? आई हैव वन क्वेश्चन कि आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा किसका कैरेक्टर किसी ने पसंद किया सबसे ज्यादा इस मूवी में? जब देखी ही नहीं तो कैसे पसंद कर सकते हैं? Okay, sir, आपने कितने साल जर्नलिज्म किया है? I'm not journalist. आपको 4 बार मैं कह चुका हूँ कि किसी ने देखा ही नहीं है। ये जो काटा है सर, I'm talking about देखो, पुराने बोल रहे नया है सर, I'm talking about this है थोड़ा सा कौला माल है। Hello. My question is Manjari. Yeah. Can you tell about your role, and after long time you are coming on the 4 big बार screen? बोलने के बाद कि किसी ने देखे नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? सर थोड़ा सा ट्रेनिंग दो यार इनको। हेलो, या इसलिए ये लोग आगे बैठे हैं और वो बेचारा पीछे बैठा है। सो वो गेस्ट है सर, मीडिया से भी नहीं है। अच्छा, मीडिया का नहीं है, चलो ठीक है। My question to Manjari. It took long time to come on big screen, and tell me about your role. Why long time? Yeah, I just came 9 months back. Yeah. 9 months. किसको प्यार करूँ released just like in September last year. So. ये लकी मैस्कॉट है। मैंने 2 फिल्में की है इसके साथ, इससे पहले दोनों फिल्में हिट हुई है। कभी जाने तू या जाने ना, एंड I was with him. एंड किस जो प्यार करूं, एंड नाउ दिस फिल्म। तो मेरी तो He is my lucky man. तीसरी हिट मंजरी की वजह से तीसरी हिट मिलेगी। It's gonna be a hat trick now. Hat trick. So you tell me about the role of this. Well, I don't think I'm allowed to reveal too much about my role.
And also, it's a very difficult role to describe because she's changing throughout the film according to the situations she's coming across, how she's changing, how she's growing as an individual. So I will not be able to explain you properly till you watch the film, you'll understand. But in short, she's a very intelligent, strong-headed girl who will never let anything pull her down, and she will just come across, I mean, she'll come out to be a winner in any situation. So. Thank you. अभी यहाँ से सारे सवालों का जवाब हाना देगी आपको. हेलो बोलो सबको. बोलो हेलो. हेलो. और आपको कोई सवाल पूछना है फिल्म के बारे में? हमारे बीच में हमारी फिल्म के और भी कलाकार हैं. अश्लेषा जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है वो भी हमारे बीच में है. तो आई लाइक टू महक ठाकुर. Welcome her also. She has done a Come good on the job. stage and show yourself. चलिए. एंड अशोक जी भाटिया हमारे साथ ही हैं मंच पे. So guys, food and drinks have been served. Please enjoy the evening and you can have a one-on-one press conference outside. Thank you so much. शांतनु कैरेक्टर चला दो इधर चारों स्क्रीन पे कैरेक्टर्स.